أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جی ہم اپنے 14ویں پارے کا آغاز کریں گے اور ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الحجر اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے. تو سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کی آیہ نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ اسلام لے آتے. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نعوذ باللہ مجنون کہتے اور کبھی کاہن قرار دیتے. ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہانت کی حقیقت آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان فرمائی ہے. ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لیے ابلیس کا واقعہ آیت نمبر 26 سے 44 میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے تکبر نے کس طرح اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا تھا. کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ ان کافروں کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے. ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز سے تبلیغ کریں جو وہ بہترین طریقے پر انجام دے رہے ہیں. نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے. سورت کا نام قوم سمود کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا ہے جو ہجر کہلاتی تھی، اور اس کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 80 میں آئے گا انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں. ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اے پیغمبر، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا پی لے، مزہ اڑا لے اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عنقریب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے.
कोई कौम अपने वक्त मुकर्रर से पहले ना तो हलाक होती है और ना उसे आगे जा सकती है, और ये लोग कहते हैं कि ए वो शख्स जिस पर ये जिक्र यानी कुरान उतारा गया है, तुम यकीनी तौर पर मजनून हो। और आया नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते। ये वो काफिर कहा करते थे, हम फरिश्तों को उतारते हैं तो बरहक फैसले देकर उतारते हैं, और ऐसा होता तो इनको मोहलत भी ना मिलती। हकीकत यह है कि ये जिक्र यानी कुरान हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ए पैगंबर, हम तुमसे पहले भी पिछली कौमों के मुख्तलिफ ग्रोहों में अपने पैगंबर भेज चुके हैं, और उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया था जिसका उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। और आय नंबर 12, मुस्लिम लोगों के दिलों में ये बात हम इसी तरह दाखिल करते हैं कि वो इस पर ईमान नहीं लाते, और पिछले लोगों का भी यही तरीका चला आया है। और अगर बिलफर्ज हम उनके लिए आसमान का कोई दरवाजा खोल दें और वो उसकी रोशनी पर उस पर चढ़ते भी चले जाएं, तब भी यही कहेंगे कि हमारी नजर बंद कर दी गई है, बल्कि हम लोग तो जादू के असर में आए हुए हैं, और हमने आसमान में बहुत से बुर्ज बनाए हैं और उसको देखने वालों के लिए सजावट अता की है। और आया नंबर 17, और उसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। अलबत्ता जो कोई चोरी से कुछ सुनने की कोशिश करे तो एक रोशन शोला उसका पीछा करता है, और जमीन को हमने फैला दिया और उसको जमाने के लिए इसमें पहाड़ रख दिए, और उसमें हर किस्म की चीजें तवाजन के साथ उगाई हैं। और आयत नंबर 20, और इसमें तुम्हारे लिए भी रोजी का सामान पैदा किया है और उन मखलूकात के लिए भी जिन्हें तुम रिस्क नहीं देते, और कोई और जरूरत की चीज ऐसी नहीं है जिसका हमारे पास खजाना मौजूद ना हो, मगर हम उसको एक मुकर्रर मियाद के मुताबिक उतारते हैं। और वो हवाएं जो बादल को पानी से भर देती हैं, हमने ही भेजी हैं। फिर आसमान से पानी हमने उतारा, फिर इससे तुम्हें सैराब हमने किया, और तुम्हारे बस में ये नहीं था कि तुम इसका जखीरा कर सको। हम ही जिंदगी देते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हम ही सबके वारिस हैं। तुम में से जो आगे निकल गए हैं उनको भी हम जानते हैं, और जो पीछे रह गए हैं हम उनसे भी वाकिफ हैं। और आयत नंबर 25, और यकीन रखो कि तुम्हारे परवरदिगार ही है जो इन सब को हशर के दिन इकट्ठा करेगा। बेशक उसकी हिकमत भी बड़ी है और इल्म भी बड़ा है। हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनकती हुई मिट्टी के साथ पैदा किया, और जिन्नात को इससे पहले हमने लू की आग से पैदा किया। और वो वक्त याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था कि मैं गारे की खनकती हुई मिट्टी से एक बशर को पैदा करने वाला हूँ, लिहाजा जब मैं उसको पूरी तरह बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनाचे सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और उसने सजदा करने वालों में शामिल होने से इनकार कर दिया। और आया नंबर 32, अल्लाह ने कहा कि इब्लीस तुझे क्या हुआ है कि तू सजदा करने वालों में शामिल नहीं है। उसने कहा कि मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं एक ऐसे बशर को सजदा करूं जिसको तूने सड़े हुए गारे से खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने कहा कि अच्छा तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और तुझ पर क्यामत के दिन तक फटकार पड़ी रहेगी। कहने लगा कि या रब, फिर मुझे उस दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दे जब लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि जा, तुझे मोहलत दी जा रही है मगर एक ऐसे दिन तक जो हमें मालूम है। कहने लगा कि या रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए अब मैं कसम खाता हूं कि इन इंसानों के लिए दुनिया में दिलकशी पैदा करूंगा और उन सबको गुमराह करके रहूंगा, सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने उनमें से अपने लिए मुखलिस बना लिया है। देखिए कितनी प्यारी बात है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के वो बंदे जो अल्लाह के लिए मुखलिस हैं उसको शैतान कुछ नहीं कर सकता। हम कहते हैं ना कि शैतान के बहकावे में आ गए, हमसे गलती होगी, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी यही कहा था कि तू मरदूद है, तूने जो करना है कर, लेकिन तू मेरे बंदों का कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस्तकामत दे और हमें अपनी राह में मजबूत कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आया नंबर 41, अल्लाह ने फरमाया, ये है वो सीधा रास्ता जो मुझ तक पहुंचता है। यकीन रखो कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, सिवाय उन गुमराह लोगों के जो तेरे पीछे चलेंगे। और जहन्नम ऐसे लोगों का तयशुदा ठिकाना है, उसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे में दाखिल होने के लिए दोजखियों को एक एक ग्रोह में बांट दिया गया है। दूसरी तरफ मुत्तकी लोग बागात और चश्मों के दरमियान रहेंगे। उनसे कहा जाएगा कि इन बागात में सलामती के साथ और बेखौफ होकर दाखिल हो जाओ। उनके सीनों में जो कुछ रंजिश होगी हम उसे निकाल फेंकेंगे। वो भाई भाई बनकर एक दूसरे के सामने ऊंची नशिस्तों पर बैठे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम आमीन। आया नंबर 49, वहां ना तो कोई थकावट उनके पास आएगी और ना उनको वहां से निकाला जाएगा। मेरे बंदों को बता दो
کہ मैं बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूँ, और ये भी बता दो कि मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक है। और उन्हें इब्राहिम के मेहमान का हाल सुनाओ, उस वक़्त का हाल जब वो उनके पीछे पहुंचे और सलाम किया। इब्राहिम ने कहा, हमें तो तुमसे डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि डरिए नहीं, हम तो आपको एक साहिब इल्म लड़के की वलादत की खुशखबरी देने आए हैं। आया नंबर 54, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम मुझे इस हालत में खुशखबरी दे रहे हो जबकि मुझ पर बुढ़ापा छा चुका है? फिर किस बुनियाद पर मुझे खुशखबरी दे रहे हो? वो बोले कि हमने आपको सच्ची खुशखबरी दी है, लिहाजा आप उन लोगों में शामिल ना हो जो नाउमीद हो जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने परवरदिगार की रहमत से गुमराह लोगों के सिवा कौन नाउमीद हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, अब आपके सामने क्या मुहिम है? उन्होंने कहा कि हमें एक मुजरिम कौम की तरफ अजाब नाजिल करने के लिए भेजा गया है। अलबत्ता लूत के घर वाले इससे मुस्तस्ना होंगे। इन सबको हम बचा लेंगे सवाए उसकी बीवी के। हमने ये तय कर रखा है कि वो उन लोगों में शामिल रहेगी जो अजाब का निशाना बनने वाले हैं और जो पीछे रह जाने वाले हैं। चुनाचे जब ये फरिश्ते लूत के घर वालों के पास पहुंचे तो लूत ने कहा कि आप लोग अजनबी मालूम होते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि हम आपके पास वो अजाब लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक कर रहे थे। आया नंबर 64, और हम आपके पास अटल फैसला लेकर आए हैं और यकीन रखिए कि हम सच्चे हैं। लिहाजा आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाइए और आप खुद इनके पीछे पीछे चलिए, और आप में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे और वहीं जाने के लिए चलते रहे जहां का आपको हुक्म दिया जा रहा है। और इस तरह हमने लूत तक अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट कर रख दी जाएगी। और शहर वाले खुशियां मनाते हुए लूत के पास आ पहुंचे। लूत ने उनसे कहा कि ये लोग मेरे मेहमान हैं, लिहाजा मुझे रुसवा ना करो और अल्लाह से डरो और मुझे जलील ना करो। कहने लगे, क्या हमने आपको पहले ही दुनिया जहां के लोगों को मेहमान बनाने से मना नहीं कर रखा था? आया नंबर 71, लूत ने कहा कि अगर तुम मेरे कहने पर अमल करो, ये मेरी बेटियां जिनसे तुम निकाह कर सकते हो मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐ पैगंबर, तुम्हारी जिंदगी की कसम, हकीकत यह है कि ये लोग अपनी बदमस्ती में अंधे हुए थे। चुनाचे सूरज निकलते ही इनको चंगाड़ ने आ पकड़ा। फिर हमने उस जमीन को तहबाला करके रख दिया और इन पर पक्की मट्टी के पत्थर बरसा दिए। हकीकत यह है कि इस सारे वाक्य में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो इबरत की निगाह रखते हैं। और ये बस्ती एक ऐसे शहर में वाक़या है जिस पर लोग मुस्तकिल चलते रहते हैं। यकीनन इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी इबरत है। और आया नंबर 78, और एका के बशिंदे भी बड़े जालिम हैं। चुनाचे हमने इनसे भी इंतकाम लिया और इन दोनों कौमों की बस्तियां खुली शहरा पर वाक़या हैं। और हिजर के बशिंदों ने भी पैगंबर को झुटलाया था और हमने उनको अपनी निशानियां दी तो वो इनसे मुंह मोड़ रहे थे और वो पहाड़ों को तराश तराश कर बेखौफो खतर मकान बनाते थे। आखिर उन्हें सुबह सुबह एक चंगाड़ ने आ पकड़ा और नतीजा ये हुआ कि जिस हुनर से वो कमाई करते थे वो उनके कोई काम ना आई। और आया नंबर 84, और हमने आसमान और जमीन को और उसके दरमियान जो कुछ है उसको किसी बरहक मकसद के बगैर पैदा नहीं किया, और क्यामत की घड़ी आकर रहेगी। लिहाजा ए पैगंबर, इन काफरों के तर्ज अमल पर खूबसूरती के साथ दरगुजर से काम लो और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार ही सबको पैदा करने वाला और सब कुछ जानने वाला है। और हमने तुम्हें 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं और अजमत वाला कुरान अता किया है, और तुम इन चीजों की तरफ हरगिज निगाह उठाकर भी ना देखो जो हमने इन काफरों में से मुख्तलिफ लोगों को मजे उड़ाने के लिए दे रखी हैं, और ना इन लोगों पर अपना दिल कुड़ाओ, और जो लोग ईमान लाए हैं उन पर अपनी शफकत का बाजू फैला दो। और आया नंबर 89, और कुफर करने वालों से कह दो कि मैं तो बस खुले अल्फाज में तंबीह करने वाला हूँ। ये तंबीह कुरान अजीम के जरिए उसी तरह नाजिल की गई है जैसे हमने उस तफरका करने वालों पर नाजिल की थी जिन्होंने अपनी पढ़ी जाने वाली किताब के हिस्से बखरे कर दिए थे। चुनाचे तुम्हारे रब की कसम, हम एक एक करके इन सब से पूछेंगे कि वो क्या कुछ करते थे। लिहाजा जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है इसे अलल ऐलान लोगों को सुना दो, और जो लोग भी शिर्क करें उनकी परवाह मत करो। यकीन रखो कि हम तुम्हारी तरफ से इन लोगों से निपटने के लिए काफी हैं जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जिन्होंने अल्लाह के साथ कोई और माबूद गढ़ रखा है। चुनाचे अनकरीब उन्हें सब पता चल जाएगा। यकीनन हम जानते हैं कि जो बातें ये बनाते हैं उनसे तुम्हारा दिल तंग होता है। और आया नंबर 98, तो इसका इलाज ये है कि तुम अपने परवरदिगार की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते रहो और सजदा बजा लाने वालों के साथ शामिल हो जाओ और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम पर हर चीज आ जाए
جس کا آنا یقینی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورت الحجر ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت نحل۔ تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورت النعم یعنی نعمتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے مشرکین عام طور پر یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ سورت جس زمانے میں نازل ہو رہی تھی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب و علائم کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بشرط کہ وہ صبر سے کام لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونے چاہیے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے سورت کا نام نحل رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جلدی مت مچاؤ۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بلند و بالا ہے۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی بخشنے والی وحی کو اس کے اوپر اتارتا ہے۔ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرو۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے۔ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا، اور چوپائے اسی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی کے بچاؤ کا سامان ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک خوشنما منظر بھی ہے، اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 8، اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور بہت سے راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا ہی دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جس میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ آیت نمبر 11، اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے درخت اگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں، اور اس نے دن اور رات کو، سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم پر کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ سارے رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں اور وہ بھی اس کے حکم پر ہی لگی ہوئی ہیں، بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سبق حاصل کریں۔ اور آیت نمبر 14، اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت حاصل کرو اور اس سے زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔
اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں، اور دریا اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اور آیہ نمبر 16، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی ہیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے ہو؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو، اور وہ بھی جو تم علل اعلان کرتے ہو۔ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، اور وہ بے جان ہیں، اور ان میں زندگی نہیں ہے، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور آیہ نمبر 22، لوگو تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے، وہ گمنڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ظاہر بات یہ ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جو وہ علل اعلان کرتے ہیں۔ وہ یقیناً گمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے تو انہوں نے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لاد لیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ لوگ علم کے بغیر گمراہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یاد رکھو کہ یہ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ لادے ہوں گے۔ اور آیہ نمبر 26، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے، پھر ہوا یہ کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا ان کو احساس بھی نہیں تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو شریک تم میرے سامنے بناتے تھے اور جن کی خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدحال مسلط ہے آج ان کافروں پر جن کی روحیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا۔ اس موقع پر کافی لوگ بڑی فرما برداری سے بول پڑیں گے کہ ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیسے نہیں کرتے تھے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ آیہ نمبر 29، لہٰذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ خیر ہی خیر اتاری ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے بھی نیکی کی روش اختیار کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بہتری ہے، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری۔ یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے، ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا۔ متقی لوگوں کو اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، یا قیامت یا عذاب کی صورت میں تمہارے پروردگار کا حکم ہی آ جائے۔ آیہ نمبر 33، جو امتیں اس سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، لیکن پیغمبر کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے صرف پیغام کو پہنچا دے۔ آیہ نمبر 36، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے ہیں جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اے پیغمبر، اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کی عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔
और ऐसे लोगों को किसी किस्म का मददगार भी मुयस्सर नहीं आता। और इन लोगों ने बड़ा जोर लगा लगा कर अल्लाह की कस्में खाई हैं कि जो लोग मर जाते हैं अल्लाह उनको दोबारा जिंदा नहीं करेगा। भला क्यों नहीं करेगा? ये तो एक वादा है जिसे सच्चा करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। दोबारा जिंदा करने का ये वादा अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि वो लोगों के सामने उन बातों को अच्छी तरह वाज़ेह कर दे जिनमें वो इख्तलाफ करते थे, ताकि काफिर लोग जान लें कि वो झूठे थे। और आयत नंबर 40, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब हम किसी चीज को पैदा करने का इरादा करते हैं तो हमारी तरफ से सिर्फ इतनी बात होती है कि हम कहते हैं कि हो जा, और बस वो हो जाती है। और जिन लोगों ने दूसरों के जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर अपने वतन छोड़ा है, यकीन रखें कि उन्हें हम दुनिया में भी अच्छी तरह बसाएंगे और आखिरत का अजर तो यकीनन बहुत बड़ा है। काश कि ये लोग जान लेते। ये हैं वो लोग जिन्होंने सब्र से काम लिया है और जो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। आय नंबर 43, और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले भी किसी और को नहीं, इंसानों को ही पैगंबर बनाकर भेजा था जिस पर हमने वही नाजिल की थी। ए मुनकरो, अब अगर तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है तो जो इल्म वाले हैं उनसे पूछ लो। उन पैगंबरों को रोशन दलाइल और आसमानी किताब देकर भेजा गया था। और ए पैगंबर, हमने तुम पर भी कुरान इसीलिए नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के सामने इस बात को वाज़ेह तशरीह से बता दो जो तुम्हारी तरफ उतारी गई है, और ताकि वो गौर व फिक्र से काम ले। तो क्या वो लोग जो बुरे बुरे मंसूबे बना रहे हैं इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह उन्हें जमीन में धंसा दे, या उन पर अजाब ऐसी जगह से आ पकड़े कि उन्हें एहसास भी ना हो, या उन्हें चलते फिरते ही ऐसे पकड़ ले क्योंकि वो आजिजी नहीं कर सकते, या उन्हें इस तरह गिरफ्त में ले ले कि वो धीरे धीरे घटते चले जाए, क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक है और बड़ा ही मेहरबान है। अब देखें, यहाँ पे अजाब की बात करके अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक है और बड़ा मेहरबान है। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि तुम कितनी भी गलत काम करोगे, यहाँ तक कि तुम पे अजाब का फैसला आ जाए, तुम अगर तौबा कर लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू कर लो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो तुम्हें माफ कर देंगे। और आया नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं देखा? आया नंबर 48, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो चीज भी पैदा की है उसके साए अल्लाह को सजदा करते हुए दाएं और बाएं झुकते रहते हैं, और वो सब आजी का इजहार करते हैं। और आसमानों और जमीनों में जितने जानदार हैं और वो सारे के सारे फरिश्ते अल्लाह को सजदे करते हैं, और वो जरा तकब्बर नहीं करते। वो अपने उस परवरदिगार से डरते हैं जो उसके ऊपर है, और वो ही काम करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। और अल्लाह ने फरमाया है कि दो दो माबूद ना बना बैठना, वो तो बस एक ही माबूद है, इसलिए बस मुझी से डरो। आय नंबर 52, और आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है, उसी की अतात हर हाल में लाजिम है। क्या फिर भी तुम अल्लाह के सिवा औरों से डरते हो? और तुमको जो नेमत भी हासिल होती है वो अल्लाह की तरफ से हासिल होती है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी की तरफ फरियाद करते हो। इसके बाद जब वो तुमसे तकलीफ दूर कर देता है तो तुम में से एक गुरु अचानक अपने परवरदिगार के साथ शिर्क शुरू कर देता है ताकि हमने उसे जो नेमत दी है उसकी नाशुक्री करे। अच्छा, कुछ ऐश कर लो, फिर अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने जो रिस्क तुम्हें दिया है उसमें वो उन बुतों का हिस्सा लगाते हैं जिसकी हकीकत खुद उन्हें मालूम नहीं है। अल्लाह की कसम, तुमसे जरूर बात पुरस होगी कि तुम कैसे बहतान बांधा करते थे। आया नंबर 57, और अल्लाह के लिए तो इन्होंने बेटियां घर रखी हैं, सुबहान अल्लाह, और खुद अपने लिए बेटे चाहते हैं जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। और जब इनमें से किसी की बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उनके चेहरे स्याह पड़ जाते हैं और वो दिल ही दिल में कुटते रहते हैं। उस खुशखबरी को बुरा समझकर लोगों से छुपते फिरते हैं और सोचते ये हैं कि जिल्लत बर्दाश्त करके उसे अपने पास रखें या जमीन में गाड़ दें। देखो, उन्होंने कितनी बुरी बातें तय कर रखी हैं। बुरी बुरी बातें तो उन्हीं में है जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, और आला दर्जे की सिफात सिर्फ अल्लाह की हैं, और वो इक्तदार का मालिक भी है और हिकमत का मालिक भी है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म की वजह से फौरन अपनी पकड़ में ले लेता तो रुए जमीन पर कोई जानदार बाकी ना छोड़ता, लेकिन वो उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है। फिर जब उनका वो वक्त आ जाएगा तो वो घड़ी भर भी उससे आगे पीछे नहीं हो सकेंगे। और आयना में 62, और उन्होंने अल्लाह के लिए जो चीजें घड़ रखी हैं जिन्हें खुद नापसंद करते हैं, फिर भी उनकी जुबानें अपनी झूठी तारीफें करती रहती हैं कि सारी भलाई उन्हीं के हिस्से में है। लाजमी बात है कि ऐसे रवैये की वजह से उनके लिए तो दोजख है और उन्हीं में उनको पड़ा रहने दिया जाएगा।
اے पैगंबर, अल्लाह की कसम, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, हमने उनके पास पैगंबर भेजे थे तो शैतान ने उनके अमाल को खूब बना संवार कर उनके सामने पेश किया। चुनाचे वही शैतान आज उनका सरपरस्त बना हुआ है और उसकी वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। और हमने तुम पर यह किताब इसलिए उतारी है ताकि तुम उनके सामने वो बात खोल खोल कर बयान कर दो जिससे उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते अपनाए हुए हैं, और ताकि वो ईमान लाने वालों के लिए हदायत और रहमत का सामान हो। आया नंबर 65। और अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और जमीन के मुर्दा हो जाने के बाद उसमें जान डाल दी। यकीनन उसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो बात सुनते हैं। और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में भी सोचने समझने का बड़ा सामान है। उनके पेट में जो गोबर और खून है, उसके बीच में से हम तुम्हें ऐसा साफ सुथरा दूध पीने को देते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है। और खजूर के फलों और अंगूरों से भी हम तुम्हें एक मशरूब अता करते हैं जिससे तुम शराब भी बनाते हो और पकीज़ा रिस्क भी। बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल से काम लेते हैं। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि तू पहाड़ों में और दरख्तों में घर बना। और आया नंबर 69। फिर हर किस्म के फलों से अपनी खुराक हासिल कर, फिर उन रास्तों पर चल जो तेरे रब ने तेरे लिए आसान बना दिए हैं। इस तरह इस मक्खी के पेट से वो मुख्तलिफ रंगों वाला मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इन सब बातों में लोगों के लिए निशानी है जो सोचते समझते हैं। और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, फिर वो तुम्हारी रूह कब्ज करता है, और तुम में से कोई ऐसा होता है जो उम्र के सबसे नकारा हिस्से तक पहुंचा दिया जाता है, जिसमें पहुंचकर वो सब कुछ जानने के बाद कुछ भी नहीं जानता। बेशक अल्लाह बड़े इल्म वाला और बड़ी कुदरत वाला है। और आया नंबर 71। और अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों को रिस्क के मामले में दूसरों पर बतरी दे रखी है। अब जिन लोगों को बतरी दी है वो अपना रिस्क अपने गुलामों को इस तरह नहीं लुटा देते कि वो सब बराबर हो जाए। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? और अल्लाह ने तो तुम में से तुम्हारे लिए बीवियां बनाई और तुम्हारी बीवियों में से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजों में से रिस्क फराहम किया। क्या फिर भी ये लोग बेबुनियाद बातों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं? और ये लोग अल्लाह को छोड़कर उन चीजों की इबादत करते हैं जो उनको आसमानों और जमीनों में से किसी तरह का रिस्क देने के लिए कोई इख्तियार नहीं रखती है और ना ही वो रख सकती है। आय नंबर 74। लिहाजा तुम अल्लाह के लिए मिसालें ना घड़ो, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल देता है कि एक तरफ एक गुलाम है जो किसी की मलकियत में है, उसको किसी चीज पर कोई इख्तियार नहीं है, और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसको हमने अपने पास से उम्दा रिस्क अता किया और वो इसमें से पोशीदा तौर पर भी और खुले बंदों भी खर्च करता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सारी तारीफें अल्लाह की हैं, लेकिन उनमें से अक्सर लोग ऐसी साफ बात भी नहीं जानते। और अल्लाह एक और मिसाल देता है कि दो आदमी हैं, इनमें से एक गूंगा है जो कोई काम भी नहीं कर सकता और अपने आका पर बोझ भी है। वो उसे जहां कहीं भेजता है वो कोई ढंग से काम करके नहीं लाता। क्या ऐसा शख्स उस आदमी के बराबर हो सकता है जो दूसरों को भी एतदाल का हुक्म दे और खुद भी सीधे रास्ते पर कायम हो? और आया नंबर 77। और आसमान और जमीन के सारे भेद अल्लाह के कब्जे में है, और क़यामत का मामला आंख झपकने से ज्यादा नहीं होगा बल्कि इससे भी जल्दी। यकीन रखो कि अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। और अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से इस हाल से निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे, और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल पैदा किए ताकि तुम शुक्र अदा करो। क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा कि वो आसमान की फजा में अल्लाह के हुक्म के पाबंद है? उन्हें अल्लाह के सिवा कोई और थामे हुए नहीं है। यकीनन उसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। और उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया और तुम्हारे लिए मवेशियों की खालों से ऐसे घर बनाए जो तुम्हें सफर पर रवाना होते वक्त और किसी जगह ठहरते वक्त हल्के फुल्के महसूस होते हैं। और उनके ऊन और उनकी रुएं और उनके बालों से घरेलू सामान और ऐसी चीजें पैदा की जो एक मुद्दत तक तुम्हें फायदा पहुंचाती हैं। आय नंबर 81। और अल्लाह ही ने अपनी पैदा की हुई चीजों से तुम्हारे लिए साए पैदा किए और पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाह गाह बनाई और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास पैदा किए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं और ऐसे लिबास जो तुम्हारी जंग में तुम्हें महफूज रखते हैं। इसी तरह वो अपनी नेमतों को तुम पर मुकम्मल करता है ताकि तुम फर्माबरदार बन जाओ। फिर भी अगर ये काफिर मुंह मोड़ते हैं तो ए पैगंबर, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वाज़ेह तौर पर यह पैगाम पहुंचा दो। ये लोग अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं फिर भी इनकार करते हैं, और उनमें से अक्सर लोग ना शुक्रे हैं।
اور उस दिन को याद रखो जब हम हर एक उम्मत में से एक गवाह को खड़ा करेंगे। फिर जिन लोगों ने कुफर अपनाया होगा उन्हें उज़र पेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ना उनसे ये फरमाइश की जाएगी कि वो तौबा ही कर ले। आया नंबर 84। और जब ये जालिम अजाब को आंखों से देख लेंगे तो ना उनसे उस अजाब को हल्का किया जाएगा ना उसको मोहलत दी जाएगी। और जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक किया होगा जब वो अपने घड़े हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, ये है हमारे बनाए हुए वो शरीक जिनको हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस मौका पर वो घड़े हुए शरीक इन पर बात फेंक मारेंगे कि तुम बिल्कुल झूठे हो, और वो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने फरमाबरदारी के बोल बोलने लगेंगे और जो बहतान वो बांधा करते थे उसका उन्हें कोई सुराग नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया था और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका था, उनके अजाब पर हम मजीद अजाब का इजाफा करते रहेंगे क्योंकि वो फसाद मचाया करते थे। और वो दिन भी याद रखो जब हर उम्मत में से एक गवाह उन्हीं में से खड़ा करेंगे और ए पैगंबर, हम तुम्हें उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए लाएंगे और हमने तुम पर यह किताब उतारी है ताकि वो हर बात खोल खोल कर बयान कर दे और मुसलमानों के लिए हदायत और रहमत और खुशखबरी का समान हो। बेशक अल्लाह इंसाफ का, एहसान का और रिश्तेदारों को उनके हकूक देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बदी और जुल्म से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो, और जब तुमने कोई मुआहदा किया हो तो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करो और कस्मों को पुख्ता करने के बाद उन्हें ना तोड़ो जबकि तुम अपने ऊपर अल्लाह को गवाह बना चुके हो। तुम जो कुछ करते हो यकीनन अल्लाह उसे जानता है। और जिस औरत ने अपने धागे को मजबूती से काटने के बाद उसे उधेड़ कर तार तार कर दिया था, तुम मुझसे ऐसे न बच जाना कि तुम भी अपनी कस्मों को तोड़कर आपस में फसाद का जरिया बनने लगो सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा नफा हासिल कर ले। आया नंबर 92। अल्लाह इसके जरिए तुम्हारी आजमाइश कर रहा है और क्यामत के दिन वो तुम्हें वो बातें जरूर खोल कर बता देगा जिनमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत यानी एक ही दीन का पैरो बना देता, लेकिन वो जिसको चाहता है उसकी जिद की वजह से गुमराही में डाल देता है और जिसको चाहता है हदायत तक पहुंचा देता है। और तुम जो भी अमल करते हो उसके बारे में वो तुमसे जरूर बास-पूस करेगा। और तुम अपनी कस्मों को आपस में फसाद डालने के जरिया ना बनाओ जिसके नतीजे में किसी और का पांव जमने के बाद फिसल जाए, फिर तुम्हें उसको अल्लाह के रास्ते में रोकने की वजह से बुरी सजा चखनी पड़ेगी और तुम्हें ऐसी सूरत में बड़ा अजाब होगा। और अल्लाह के अहद को थोड़ी सी कीमत पर मत बेचो। अगर तुम हकीकत समझते हो तो जो अजर अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है। और आया नंबर 96। और जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब खत्म हो जाएगा और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और जिन लोगों ने सब्र से काम लिया होगा हम उन्हें उनके बेहतरीन कामों के मुताबिक उनका अजर जरूर अता करेंगे। जिस शख्स ने भी मोमिन होने की हालत में नेक अमल किए होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे और ऐसे लोगों को उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक उनकी अजर जरूर अता करेंगे। चुनाचे जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। ये है वो आयत जिसकी वजह से हम जब भी कुरान पाक पढ़ते हैं तो हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि चुनाचे जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। आया नंबर 99। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि शैतान का बस ऐसे लोगों पर नहीं चलता जो ईमान लाए हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। उसका बस तो उन लोगों पर चलता है जो उसे दोस्त बनाते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। और जब हम एक आयत को दूसरी आयत से बदलते हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, तो ये काफिर कहते हैं कि तुम तो अल्लाह पर झूठ बांधने वाले हो, हालांकि उनमें से अक्सर लोग हकीकत का इल्म नहीं रखते। कह दो कि ये कुरान करीम तो रूहुल कुदस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारे रब की तरफ से ठीक ठीक लेकर आते हैं ताकि वो ईमान वालों को साबित कदम रखें और मुसलमानों के लिए हदायत और खुशखबरी का समान हो। और आय नंबर 103। ए पैगंबर, हमें मालूम है कि ये लोग तुम्हारे बारे में ये कहते हैं कि इनको तो एक इंसान सिखाता और पढ़ाता है, हालांकि जिस शख्स का ये हवाला दे रहे हैं उसकी जुबान अजमी है और ये कुरान की जुबान साफ अरबी जुबान है। जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते उनको अल्लाह हदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह पर झूठ तो पैगंबर नहीं, वो लोग बांधते हैं जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं रखते और वही हकीकत में झूठे हैं।
जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाने के बाद उसके साथ कुफर का इर्तिकाब करे, वो नहीं जिसे जबरदस्ती कुफर का कलमा कहने पर मजबूर कर दिया गया हो जबकि उनका दिल ईमान पर मुतमईन हो, बल्कि वो शख्स जिसने अपना सीना कुफर के लिए खोल दिया हो। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की तरफ से गजब नाजिल होगा और उनके लिए जबरदस्त अजाब तैयार किया गया है। और आय नंबर 107, ये इसलिए कि ऐसे लोगों ने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में ज्यादा महबूब समझा है, और इसलिए कि अल्लाह ऐसे नौशुक्र लोगों को हदायत तक नहीं पहुंचाता। ये ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ने इनके दिलों पर, इनके कानों पर, इनकी आंखों पर मुहर लगा दी है, और यही वजह है जो अपने अंजाम से बिल्कुल गाफिल हैं। लाजमी बात है कि यही लोग हैं जो आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे। फिर यकीन जानो कि तुम्हारे परवरदिगार का मामला ये है कि जिन लोगों ने फितने में मुब्तला होने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और सब्र से काम लिया, तो इन बातों के बाद तुम्हारा परवरदिगार यकीनन बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। ये सब कुछ उस दिन होगा जब हर शख्स अपने दिफा की बातें करता हुआ आएगा और हर शख्स को उसके सारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन लोगों पर कोई जुल्म नहीं होगा। और आया नंबर 112, अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है जो बड़ी पुरअमन और मुतमईन थी। उसका रिस्क उसको हर जगह से बड़ी फरवानी के साथ पहुंच रहा था। फिर उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करनी शुरू कर दी, तो अल्लाह ने उनके करतूत की वजह से उनको ये मजा चिखाया कि भूख और खौफ उनका पहनना ओढ़ना बन गया। और उनके पास उन्हीं में से एक पैगंबर आया, मगर उन्होंने उसको झुटलाया। चुनाचे जब उन्होंने जुल्म अपना लिया तो उनको अजाब ने आ पकड़ा। लिहाजा अल्लाह ने जो हलाल पाकीज़ा चीजें तुम्हें रिस्क के तौर पर दी हैं, उन्हें खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, अगर तुम वाकई उसी की इबादत करते हो। और आया नंबर 115, उसने तो तुम्हारे लिए बस मुर्दार खून खंजीर का गोश्त और वो जानवर हराम किया है जिस पर अल्लाह के सिवा और किसी का नाम पुकारा गया हो। अलबत्ता जो शख्स भूख से बिल्कुल बेताब हो, लज्जत हासिल करने के लिए ना खाए और जरूरत की हद से आगे ना बढ़ने वाला हो, तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और जिन चीजों के बारे में तुम्हारी जुबानें झूठी बातें बनाती हैं, उनके बारे में ये मत कहा करो कि ये चीज हलाल है और ये चीज हराम है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि तुम अल्लाह पर झूठा बहतान बांधोगे। यकीन जानो कि जो लोग अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं वो फलाह नहीं पा सकते। दुनिया में उन्हें जो ऐश हासिल है वो बहुत थोड़ा है और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। और यहूदियों के लिए हमने वो चीजें हराम की थी जिनका तस्करा हम तुमसे पहले कर चुके हैं, और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते रहे। आया नंबर 119, और फिर भी तुम्हारा रब ऐसा है कि जिन लोगों ने नादानी में बुराई का इर्तिकाब कर लिया और उसके बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, तो इन सब बातों के बाद भी तुम्हारा परवरदिगार उन्हें बख्शने वाला बड़ा मेहरबान पाएगा। बेशक इब्राहिम ऐसे पेशवा थे जिन्होंने हर तरफ से यकसू होकर अल्लाह की फर्माबरदारी इख्तियार कर ली थी। वो इन लोगों में से नहीं थे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते थे। वो अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। उसने उन्हें चुन लिया था और उसको सीधे रास्ते तक पहुंचा दिया था, और हमने उनको दुनिया में भी भलाई दी थी और आखिरत में भी यकीनन उनका शुमार साले लोगों में होगा। फिर ए पैगंबर, हमने तुम पर भी वही के जरिए ये हुक्म नाजिल किया है कि तुम इब्राहिम के दीन की पैरवी करो जिसने अपना रुख अल्लाह ही की तरफ किया हुआ था, और वो इन लोगों में से नहीं था जो अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। आया नंबर 24, हफ्ते के दिन के अहकाम जो इन लोगों पर लाजिम किए गए थे जिन्होंने उसके बारे में इख्तलाफ किया था, यकीन रखो कि तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनके दरमियान इन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिसमें ये लोग इख्तलाफ करते थे। अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ और खुश उसलूबी से नसीहत करके दावत दो, और अगर बहस की नौबत आए तो इनसे बहस भी ऐसे तरीके से करो जो बेहतरीन हो। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गए हैं, और उनको भी खूब जानता है और उनसे खूब वाकिफ है जो राह रास्त पर कायम है। और अगर तुम लोग किसी के जुल्म का बदला लो तो इतना ही बदला लो जितनी ज्यादती तुम्हारे साथ की गई है, और अगर सब्र ही कर लो तो यकीनन ये सब्र सब्र करने वालों के हक में बहुत बेहतर है। और आया नंबर 127, और ए पैगंबर, तुम सब्र से काम लो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है, और इन काफरों पर सदमा ना करो जो मकारियां ये लोग कर रहे हैं,
اس کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ النحل ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہمارا 14واں پارہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ احکامات پڑھے ہیں ہمیں اس کی توفیق عطا کر کے ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ یاد کروا دیتی ہوں، ایگزام دینا نہیں بھولیے گا اور جہاں تک ہو سکے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا بھی نہیں بھولیے گا۔ اردو میں ہے، آسان ہے، امید ہے کہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور ان کی زندگی میں قرآن کھل جائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔